गुजारिश है अपने कायद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करें। मैं आज के इस प्रोग्राम में सीडीएम मजदूर यूनियन के मरकजी अहदेदार जनाब अपने भाई वाजिद गुज्जर साहब, चौधरी बरार साहब, सफदर नकवी साहब, असद जंगीर कियानी साहब और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, जी आया नो। चौधरी यासीन, चौधरी यासीन, चांद तारा सितारा, चांद तारा सितारा, चांद तारा सितारा, चांद तारा। चौधरी यासीन गुरनूर लंदन जितवाना, तारे दे निशान पे खब्बाए लगाना, सीधे दिशान चौधरी बताना। मेरा चौधरी जित वैसी, ओ मेरा चौधरी यासीन गुरनूर लंदन जितवाना, तारे दे निशान पे खब्बाए लगाना। मेरा चौधरी जित वैसी, जश्न मनाने चौधरी दी जित दा जश्न मनाने। चौधरी यासीन पूरा दाए रखवाला, नसूरा के कामा तू हर हाले जिकराना, तारे दे निशान पे खपाए लगाना। मेरा चौधरी जित वैसी, ओ मेरा चौधरी यासीन, छोरा से चेहरा मैं हंसी ने लगाना। चौधरी की जित का जश्न मनाना। मेरा सीडीएम मजदूर यूनियन के कायद जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है खड़े होकर अपने कायद का इस्तकबाल करें। मैं सीडीएम मजदूर यूनियन के कोऑर्डिनेटर जनाब चौधरी तारक गुज्जर साहब को आज के इस प्रोग्राम तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, जी आया नो। सीडीएम मजदूर यूनियन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई जनाब अली असगर मानी भट्ट साहब तशरीफ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है भरपूर तालियों में हमारे भाई का इस्तकबाल करें। मैं मानी भट्ट साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। उनसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले हैं। चौधरी जित वैसी, चौधरी यासीन। सीडीएम मजदूर यूनियन के कायद पाकिस्तान भर के मजदूरों के कायद जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है भरपूर तालियों के साथ अपने कायद का इस्तकबाल करें। सीडीएम मजदूर यूनियन
الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا چودھری نیاز صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کریں. جناب چودھری نیاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڈی گروتی دے وچ نبی دا پیار شامل. ساڈی گروتی دے وچ نبی دا پیار شامل. نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، منن والے ہاں اللہ دے ولیاں دے. غوث سے جلی نہ کریے تے کی کریے، مٹھا چوہاں یاراں دا ذکر سجن. کری کری نہ کریے تے کی کریے، ہو کے آلے نبی دے غلام ناصر. علی علی نہ کریے تے کی کریے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اس کی تھوڑی سی بیس بڑھا دیں اور ان کو بڑھا دیں. بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کلام کو اور پیش کر رہا تھا زاہد بھٹی صاحب کا حکم ہے جو کلام آپ چودھری حسین صاحب کے لفظوں میں ہمیشہ پڑھتے تھے وہ پیش کریں. بڑا میٹھا اور خوبصورت کلام ہے. تمام یہاں باپ پہلا اور دوسرا شعر میرے ساتھ مل کے پڑے گا. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. ہاں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی. جس کو کمی نہیں رہندی وہی پڑے گا. سجاد بلند کا اس شعر میں نہ لکھے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. گیت سرکار تے گائے کمی رہندی نہیں. گیت سرکار تے گائے تے کمی رہندی نہیں. ہاں جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. مار کھا کھا کے بلال کا گانا لہندا سکھا بیٹی چھت تے کھڑا ہو کہ ہو کہندا سی یار لئی مار چکھائے تے کمی رہندی نہیں. یار لئی مار چکھائے تے کمی رہندی نہیں. ہاں جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. شعر سنیے اور ایمان تعالیٰ کیجئے. اس گھرانے تے وفادارا کو صدقے جائیے سوہنے دی آلت حبدارا کو صدقے جائیے. جس کو اللہ تعالیٰ پنی سلامت دیتی اللہ سجاد بلند کرو. شعر میں نہ لکھے ٹکڑے پنج تن تے جکھائے تے کمی رہندی نہیں. ٹکڑے پنج تن تے جکھائے تے کمی
رہندی نہیں ہاں جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں ہے تیری ہاں تے پتا ہے تیری گل پایا رب میں تے کئی بار اے آزمایا نال ہے درد جلائے تے کمی رہنا رہے ہری نال ہے درد جلائے تے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سوڑے تے منائے تے کمی رہندی نہیں. اور آخری شعر مجھے بتا اسی سارے ہے دنیا اسا ہے تیری لینا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. میں کہنا دم دم ہر ویلے تسا دعا تھانو بلند کر کے کہنا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو منہ جڑا پھیر لوے میرے مولا علی کولو پاک محمد تو پھر اس کی لینا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. آخری دفعہ میں کہہ کے تاریخ میں اجازت چاہوں گا. میں کہنا دم دم ہر ویلے اسٹیج والے نیچے دو اکھروں بلند کر کے علی علی دا نعرہ لا رہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ اس نعت کے صدقے چودھری محمد یاسین صاحب ہمارے قائد کو لمبی صحت والی اور ایمان والی زندگی نصیب عطا فرمایا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں منقبت کے لیے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا نال آسرا ماں حسین دی. نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا نال آسرا ماں حسین دی. ختیجہ آمنہ ختیجہ آمنہ تے آوا آسیہ انہاں دی پیشوا ماں حسین دی. نبی آسرا شاہ اسد زہرا دا لالے اپنی ماں دی وجہ تو دین بنا بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو ناز مصطفیٰ ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نماز انبیاء امام حسین دی. نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا نال آسرا امام حسین دی. ختیجہ آمنہ ختیجہ آمنہ تے آوا آسیہ انہاں دی پیشوا امام حسین دی. نبی آسرا
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक मरतबा फिर मेंटेनेंस डायरेक्टरेट की तरफ से आज के इस अजीमुशान इस्तकबालिया में तशरीफ लाने वाले तमाम मजदूरों को दिल की मेरे नहायत ही मोहतरम चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मरकजी कैदीन और मेरे मेंटेनेंस डायरेक्टरेट के भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ चौधरी साहब ने जो मुख्तसर टाइम में, मुख्तसर वक्त में जो काम कराए हैं, आम इज्तिमाई, खुदा की कसम दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। मैं ये कहूँगा चौधरी साहब से, ये वक्त तो नहीं है लेकिन मुझ पर प्रेशर भी है। हमारे मेंटेनेंस के जो प्रमोशन के जो मामलात हैं उनका नोटिफिकेशन, इसके बारे में आज फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ये बात जरूर इसको कबूल फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सीडीएम मजदूर यूनियन बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद यासीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, सीडीए मजदूर यूनियन के कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, सीडीए मजदूर यूनियन के सदर औरंगजेब खान साहब, सीडीए मजदूर यूनियन के चेयरमैन राजा शाकिर जमान कियानी साहब, सुप्रीम हेड सूफी महमूद अली साहब और उनके साथ आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को मेंटेनेंस डायरेक्टरेट में हम खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब ने रमज़ान शरीफ से पहले बहुत सारे रुके हुए काम, तकरीब जो टाइम ज़ाया हुआ था उसको कवर किया, टाइम स्केल कराए, अलाउंसेस में इजाफा कराया, सिक्योरिटी गार्ड का 5,000 रुपये तनख्वाह में इजाफा कराया और हम मेंटेनेंस वाले 1 और 2 वाले बार बार हम जाते थे, चौधरी साहब हमारा एस्क्रेशिया की फाइल करा दें, हमारा एस्क्रेशिया की फाइल करा दें। चौधरी साहब ने मेहरबानी फरमाई और पूरे सीडीए का एस्क्रेशिया करा दिया। मैं उन्हें इस बात पर खराज तहसील पेश करता हूँ और साथ ही साथ वो जो शौकत भाई ने मुतालबा किया कि मेंटेनेंस के लिए कोई खसूसी अलाउंस कराएं, मेंटेनेंस का खसूसी अलाउंस कराएं ताकि हमारे भी अलाउंसेस में खातिर खा इजाफा हो सके। दीगर हमारा असाइनमेंट अकाउंट का मसला है जिसकी वजह से हमारे तनख्वाहों के बिल भी अक्सर लेट होते हैं और ओवर टाइम और दीगर बिल भी अक्सर 2-2, 3-3 माह रुके रहते हैं। ये सब साथी कहते हैं चौधरी साहब से बात करें। तीसरा, हमारी फील्ड स्टाफ की प्रमोशनें मेंटेनेंस डायरेक्टरेट पे काफ़ी अर्से से नहीं हुई। मेहरबानी फरमाएं, हमारे अफसरान भी, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है, वो भी अभी आ रहे हैं। हम चाहते तो ये थे उनके सामने ये मसला उठाएं, ये प्रमोशंस का मसला भी हमारा हल किया जाए। बाकी इसके साथ साथ तमाम दूसरे डायरेक्टरेट, हम मेंटेनेंस 1 वाले, 2 वाले या 3 वाले हो, हम सब मेज़बान हैं। बाकी दूसरे डायरेक्टरेटों से आने वाले हर एक शख्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंटेनेंस के हर एक मुलाजिम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जनरल सेक्रेटरी सीडीए मजदूर यूनियन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, मेरे भाई खान औरंगजेब साहब, हाजी साबर साहब, सूफी महमूद साहब, सरदार आसिफ साहब, सत्तर अब्बासी साहब, तारुक महमूद गुजर साहब, इज़्ज़त लाला मानी भट्ट साहब, सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, मेरे भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहला सरदार शौकत साहब, जैद पट्टी साहब, अलियास खोखर साहब की पूरी टीम ना तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना कि आज उन्होंने एक ईद मिलन पार्टी दी थी और इस बहाने असा की एक बहने ना गल्ला करने ना एक टाइम मिल गया या बहाना मिल गया। मैं सब तो पहले तो जितने भी चौधरी साहब ने काम कराए याद करसा कि सीडीए मजदूर यूनियन की तुसा कामयाब किया, ये साड़ी ड्यूटी लाई है। दौरान रेफरेंडम चौधरी साहब, खान साहब असा कहने से कि सीडीए मजदूर यूनियन कामयाब कराओ, सीडीए मजदूर यूनियन की कामयाब कराने तक तुसा जागो, उस तो बाद तुसा स्याए, उस तो बाद असा जागसा, तुसा ने काम असा हाल करा। आज सीडीए मजदूर यूनियन ने कमानी मिसाल जी है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान किसी यूनियन ने आज तक इस तरह के काम नहीं किए जिस तरह सीडीए मजदूर यूनियन
चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने काम किए, ये साड़ी ड्यूटी सी, असा काम किए, तुसा ने मेहरबानी कि तुसा असाना शुक्रिया अदा किया। मैं सिर्फ इतनी गल कर सा कि एक लोड़ा है, बच्चा जमुरा है, पाकिस्तान ना शहरी नहीं है, बरतानिया इंग्लैंड ना शहरी है, बदतमीज आदमी है, उसकी करप्शन ना नहीं पता। मैं ते पुराने लोग भी बैठे कि बच्चे जमुरे ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਅਸਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮਸੱਲਤ ਆ। 2650 ਦੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ, 2650 ਦੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ। सीडीए की तारीख है जितनी किसी लीड नहीं की। ये चौधरी यासीन साहब और उसकी टीम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर जी पिछड़ी कारकर्दगी है उस बुनियाद पर 2650 की लीड की। फरद कमाल पाशा मारूम डिसमिस करप्शन जो है सा, मैं फिर तुहानू ये दस रहा कि फरद कमाल पाशा डिसमिस करप्शन जो है सी 362 कनाल रकबा किया सी कलर सीधा रोड ऊपर। उसने पर इसकी उसने पत्नियां ने बेचे मारे से, कचहरी में मारे से ने, उसने पर इसने पर FIR भी हुई सी। तो ये उसकी मैं दसना चाहना कि असा इन्ना छेड़ असा तेरे बहुत पुराना कौशल न्याजी तू लैके ना तो तेरे प्यू ने मरने तक असा फलसफा खोल दे सा। फिर तू बाहर निकल से तू मुंह दसने जो किसी की नहीं रहने लगा। मैं इस बार आज मैं तकरीर नहीं सी करनी, लेकिन ये दसना चाहना था क्योंकि तुसा पुराने लोग हैं, कुछ नवे लोग हैं कि उसना वालो तुसा मैं मीडिया आ रहा की जी साड़ी मीडिया टीम है उन्होंने भी दरखास्त करता कि लोगों की दसो कि उसना वालो जरा ना करप्शन डिसमिस होया सा। उसनिया भैन जड़ियां वो हिस्सा लेने वास्ते दार पदार फिरनिया रही, वो अपन भैनों का भी माल खा गया सा। सूफी महमूद साहब बैठे, सरदार आसफ साहब बैठे, इन्हें की वो आके मिलिया भी कि साड़ा हक फरद कमाल पाशा खा गया। जिस भैनों ने हक खादा वो मुलाजमान ने भी तो साथ खादा ही तो डिसमिस होया ना। फरद चौधरी यासीन साहब ने उन्होंने पूरी टीम ने तुसा लोगों की खिदमत की है। आज तनख्वाह किन्ने हो, ओवर टाइम किन्ने हो, तो जिसले नोट गिनने हो सरदार नसीम साहब तो 3-4 दफा नोटा की थोक लाने हो, इतनी बड़ी गद्दी होनी है। और एक पास कादियाज़म की तस्वीर होनी, दूसरे पास चौधरी यासीन की तस्वीर नजर आनी है। आज कोई ऐसा मुलाजम नहीं है जो लाख रुपए तो घट तनख्वाह किन्ना हो। चौधरी यासीन नहीं, चौधरी यासीन साहब की टीम नहीं, उन्होंने जदोजहद का नतीजा है कि आज CDA का मुलाजम खुशहाल है। तुसा दूसरे महकमे के मुलाजमान को जाओ जिसले और रिटायर हो रहे, कितनी पेंशन हुई है जी 11,000, कितनी पेंशन हुई है जी 13,000। तो CDA के मुलाजमान को पूछो कितनी पेंशन हुई है जी 35,000, कितनी पेंशन हुई है जी 40,000। एक कोई मौजे नहीं होए, CDA मजदूर यूनियन की जदोजहद का नतीजा है। आज और दूसरा कुबड़ा अशोक जरा बच्चे ने कि मैं कोल आबादी है नहीं तो आज मैं गंदियां गल्लां भी उसने खिलाफ कर दी, लेकिन मैं आबादी ना लिहाज करना पाया। और कुबड़ा अशोक जिसकी अपने वालद नहीं नहीं पता, उसकी कुल वोटा लभियां 22 विचों जिसने चौधरी साहब ने एक्सरेशिया कराया, टाइम स्केल कराया, वो टाइम कराए और बेताशे काम कराए, तो वो जो 21 बंदे से वो चौधरी यासीन साहब ने मैं इतना ऐलान करेंगे और कला रह गया कुबड़ा अशोक। और 22 वोटा वाले, और 22 वोटा वाले भी साढ़े कोई गल कर सो। मैं इस तो ज्यादा गल्ला ना कर रहा कि चौधरी साहब की टाइम देना, बस इतनी गल तुसा की दसनी सी। इंशाअल्लाह तुसा की हर खुशियां मिल सो चौधरी यासीन साहब ने तरफों और चौधरी यासीन साहब की टीम की तरफों। मैं डायरेक्टर मेंटेनेंस ना भी खुश आमदीद करना, उन्होंने शुक्रिया अदा करना। मैं फिर एक दफा मेंटेनेंस के सारे भरावां का शुक्रिया अदा करना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज की सीड मिलन पार्टी में मेंटेनेंस के डायरेक्टर जनाब मशूक अली शेख साहब, डिप्टी डायरेक्टर इस्लाम बलोच साहब तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से CDA के तमाम मजदूरों की तरफ से उनको खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, जी आया नो जी मामा जी। कम वक्त में जब आपने अपनी क़यादत पे एतमाद किया, क्योंकि CDA मजदूर यूनियन मुज़ाकरात पे यकीन रखती है और बिला तफरीक रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर मजदूर की खिदमत पे यकीन रखती है। हम गरजते कम और बरसते ज्यादा है। राजा शाकिर साहब ने बात की तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मन के एक मुफक्किर ने लिखा था
कि रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो कभी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हमने मंजिल पे पहुंचना है, हमने नहीं देखना कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। हमारी मंजिल मजदूर की खिदमत है, हमारी मंजिल मजदूरों के प्लाट है, हमारी मंजिल मजदूरों के बच्चों की भर्ती है, हमारी मंजिल मजदूरों की खुशहाली है। इंशाअल्लाह अपनी कायद की क़यादत में बहुत जल्द हम ये मंजिल हासिल करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने कायद, पाकिस्तान भर के मजदूरों के कायद, सीनियर मजदूर यूनियन के कायद, कायदे मजदूर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से कि वो आए और अपने मजदूरों से खिताब करें। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद। सीडीएम मजदूर यूनियन जिंदाबाद। चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद। सीडीएम मजदूर यूनियन आगे चौधरी मोहम्मद यासीन आगे चौधरी 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 सीडीएम मजदूर यूनियन जिंदाबाद। चौधरी मोहम्मद यासीन जिंदाबाद। चौधरी तेरा जान निशान बेशुमार बेशुमार। 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंतहाई काबिल एहतराम हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब मशूक अली शेख साहब, डायरेक्टर मेंटेनेंस, मोहतरम जनाब सलाम बलोच साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस, और मेरे मोहतरम भाई सदर सीडीए औरंगजेब, सदर सीडीए मजदूर यूनियन औरंगजेब खान साहब, चेयरमैन राजा शाकर जमान क्यानी साहब, सुप्रीम हेड सूफी महमूद अली साहब, और हमारे पैटर्न चीफ राजा साबर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मानी भट्ट साहब, काबिल एहतराम भाई सैयद मकबूल शाह साहब, और हमारे सीडीए मजदूर यूनियन के कोऑर्डिनेटर जो आप सबके लिए दिन रात काम करते हैं, चौधरी साहब जो अब स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं, जो मेरे दिन रात के साथी हैं, और फिर इसके बाद आज की ये खूबसूरत महफिल और ईद मिलन पार्टी के नाम से जो मेंटेनेंस 1 के साथियों ने और मेंटेनेंस के साथियों ने सजाई है, उनमें मेरे भाई सरदार शौकत साहब, जाद हुसैन भट्टी साहब, अनायतुल्लाह अब्बासी साहब, शहजादा अवान साहब, बरखुरदार चंदजेब गुज्जर साहब, शफीक खोखर साहब, असद अवान साहब, शाह हुसैन भट्टी साहब, फाहद मुगल साहब, सैयद मुकर्रम शाह साहब, आबद भट्टी साहब जो, और हमारे इलेक्ट्रिकल से जुल्करनैन साहब, रेवेन्यू से मेरे भाई जनाब खालिद महमूद साहब, आबद अलवी साहब, ज़ाक काठिया साहब, पार्लियामेंट से राजा मुर्तज़ा साहब, हमेशा की तरह हमारे सीनियर नायब सदर सरदार नसीम साहब, उनके साथ तशरीफ फरमाया है जफर शाह साहब, बाबर जदून साहब, चौधरी नासिर अजीज साहब, महर अमरान अब्बासी साहब हमारी सोशल टीम के, और शाहद सत्ती साहब जो हमारी सोशल टीम के बहुत ही मुतहर्रिक साथी हैं, उनकी पूरी टीम, शाह गुज्जर साहब, अमीन गुज्जर साहब और तमाम साथी, और फिर हमारे मेंटेनेंस के ही बड़े ही मुतहर्रिक, बड़े जज्बाती और बड़े दरीना साथी अली रजा बल्टी साहब, नौजवान मेंटेनेंस के ही एजाज आलम साहब, लाला इज्जत खान साहब, और मेरे मेंटेनेंस के बहादुर, गयूर और मोहब्बत करने वाले अजीम मिलत का साथियों,
मैं आप सबका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चौधरी नियाज नक्शबंदी साहब जो हमारे सीनियर नायब सदर भी हैं, जो आशिक रसूल हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हर मौके पे हमारे साथ होते हैं। मैं असद महमूद का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं शराजी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं गुलाम मोहम्मद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सईद सेक्रेटरी से मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे मेरे मोहब्बत करने वाले, मेरे दस्तो बाजू, मेरी ताकत यहाँ मौजूद है। मैं एक एक शख्स का वहाँ से लेके यहाँ तक स्टेज पे बैठे हुए जो सब का शुक्रगुजार हूँ, और खुदा से ये दुआ भी करता हूँ कि ये जो हमारी मोहब्बतों का सिलसिला है, इसको अल्लाह ताला फ़रोग़ दे। मैं मलिक हसन साहब रोड से तशरीफ़ फरमा है, अनवर साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके और साथी, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये नफ़रतों का खात्मा हो, अमन मोहब्बत का दर्स देते हैं, और अमन और मोहब्बत ही तरक्की का रास्ता है। और हमें ये फ़ख्र है CDA के तमाम मुलाज़मीन को, मैं बात एम्प्लॉइज़ की करता हूँ, हम सारे एम्प्लॉइज़ हैं। अगर मशूक अली शेख साहब डायरेक्टर मेंटेनेंस हैं, अल्लाह ने इनको मकाम दिया है, हम इनका एहतराम करते हैं। अगर ये बेलदार हैं, ये सुपरवाइज़र हैं, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, हम सब जब मिलते हैं तो फिर इसे एक टीम कहते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है, और ये खुशबू इस्लामाबाद है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है। मुल्क का दारुल हुकूमत मुल्क का चेहरा होता है, मुल्क का आईना होता है, उससे पूरी कौम की शक्ल नजर आती है। लिहाजा हमें फख्र है कि हम इस शहर को तामीर करने वाले हैं, हमें फख्र है कि हम इस शहर के मेजबान हैं, और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम अपनी मेजबानी के फराइज ईमानदारी और दयानतदारी से अदा करें। हम ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे अंदर मोहब्बतें हों, हम एक टीम वर्क को रवाज दें, और जहां भी टीम वर्क हुआ उस मुआशरे ने तरक्की की, उन मुल्कों ने तरक्की की, उन तंजीमों ने तरक्की की। लेकिन यहाँ पे अलग अलग अगर हम टोले बढ़ा लें तो वो अच्छा रास्ता नहीं है, वो मंजिल की तरफ नहीं जाता, उलझ जाता है। मैंने जिंदगी के 52 साल, निस्फ सदी से ज़ायद इस शहर का रहायशी हूँ, और मुझे फख्र है कि मैंने मेंटेनेंस ही के अंदर, जहाँ आजकल हमारे डायरेक्टर मशूक अली शेख साहब बैठते हैं, इसी बिल्डिंग में मैंने ज्वाइनिंग दी, और सबसे यहाँ वजारत खारजा का दफ्तर था, सबसे मेरा शोबा इलेक्ट्रिकल था जो आबद भट्टी और जुल्करनैन का है। उस वक्त एक सब डिवीजन होती थी, उस वक्त वर्क चार्ज स्टाफ होता था, तसव्वुर नहीं था कि कभी CDA का अदारा भी परमानेंट हो जाएगा। ज़बानी रखा जाता था, ज़बानी निकाल दिया जाता था। हमने उन दिनों के अंदर सोचा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का अदारा है, तो फिर क्या है, वजह है कि यहाँ के हालात क्या हैं। तो फिर हमने 4-5 दोस्तों ने राजा जफरुल हक साहब की मशावरत से हमने ट्रेड यूनियन बनाई। एक दफ्तर था मेरे मेंटेनेंस के साथियों, चूंकि मेंटेनेंस बहुत पुरानी डेट है, इसलिए बताना चाहता हूँ, ये तारीख है, तारीख कौमों से शेयर की जाती है। जब हमने 69 में यूनियन बनाई तो लाहौर में दफ्तर था, और फिर जब हमने पहला इजलास किया तो लाल मस्जिद के साथ, जहां आजकल इतवार बाजार लगता है, वहां हमने जलसा किया। और CDA के मुलाजमीन के लिए वो ईद का दिन था, खुशी का दिन था, और उस वक्त भी एनवायरनमेंट के अंदर इतवार की छुट्टी नहीं थी, जैसे अभी दोहरा निजाम चलता रहा। हम फिर पीछे को चले गए थे 4 साल में, हम फिर शहर के अंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। कहीं हफ्ते की छुट्टी थी, कहीं हफ्ते को काम हो रहा था, कोई कानून नहीं था। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसे कहते हैं जबरी मुशक्कत।
اور کسی قانون کے تحت کوئی جبری مشقت نہیں لے سکتا. یہ جرم قرار دیا گیا ہے. یہ عالمی ادارہ محنت جو ILO ہے اس کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے. لیکن بدنصیبی یا پھر اللہ کی طرف سے ہماری کوتاہیاں تھیں یا پھر اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ 2017 میں کچھ قوتوں نے مل کر، وہ قوتیں جو کبھی بھی اس شہر کے اندر غریب کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، نہ اس ملک کے اندر اور نہ ہی کیپٹل کے اندر، وہ ساری قوتیں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چودھری یاسین اس کی ٹیم کا راستہ روکنا ضروری ہے. اگر یہ چلتا گیا، یہ نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، یہ منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو اسے نہ روکا گیا تو یہ منزل پہ پہنچ جائے گا. پھر سارے لوگوں کو ورگلایا گیا، سبز باغ دکھائے گئے، لالچ دیا گیا دھونس اور دھاندلی سے، پھر ہمیں منزل سے ہٹا دیا گیا. اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اس میں پختگی آنی چاہیے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو 4 سال کا CDA کا تاریخ دور ہے، جہاں انتظامیہ اتنی طاقتور ہو گئی، ایسے لگتا تھا کہ CDA کے اندر منی ماشاءاللہ لگا دیا گیا. میں نے اس وقت بھی بطور اپوزیشن قانون کا سہارا لیا. جمہوری آدمی ہوں، جمہوریت پہ پختہ یقین ہے، جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں ساتھی، کسی ایک بھی ساتھی کے ساتھ جہاں جہاں ناانصافی ہوئی، چودھری یاسین اپنی کیپیسٹی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. چودھری یاسین نے عدالتوں کے اندر پروو کیا، ثابت کیا کہ آن دی گراؤنڈ آف ٹریڈ یونین یہ وکٹمائزیشن ہے. تو میں نے ورکر کو تحفظ دیا اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ جو پلاٹ جس کا تذکرہ آج کل بہت ہے، پچھلے دنوں میں انتظامیہ نے آپ کو بلا دیا تھا. CDA مزدور یونین زندہ باد، چودھری محمد یاسین زندہ باد. اتنا دباؤ تھا میرے غریب مزدوروں پہ کہ پلاٹ جو خوشحالی لاتا ہے، جو آپ کا حق ہے، وہ آپ بھول گئے تھے. ہفتے کی چھٹی کی بحالی کا مسئلہ جو تھا وہ پرائرٹی اختیار کر چکا تھا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اتنا ظلم بڑھا دو. یہ ظلم پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آتے ہی نیگوسیشن کی، ڈائلاگ کی پالیٹکس کی جو دنیا میں ہے. ہمیں ڈائلاگ کرنا آتا ہے، ہمیں اپنا سبجیکٹ کا پتہ ہے، ہم نے اپنے رائٹس لینے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے لینے ہیں. اب جب ٹیبل پہ کوئی نہ بٹھائے، جب ٹیبل پہ بیٹھنے کی کوئی اجازت نہ دے تو پھر وائلنس ہوتا ہے. پھر یہ سڑکوں پہ آنا جمہوری حق ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہماری پولیٹیکل پارٹیاں بھی پچھلے دنوں میں کتنا انریسٹ رہا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان جہاں ہر شہری کو انجمن سازی کا حق دیتا ہے. یہ بات پاکستان کا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، میرے محنت کشو ہر جلسے کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے، اس لیے کہ وہ غریبوں کو زبان دی، اس لیے کہ اس نے غریبوں کو حقوق لینے کا سلیقہ سکھایا، اس لیے کہ اس نے اس ملک کو 1973 کا آئین دیا، اس لیے کہ مشکل ترین حالات کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قومی ادارے بنائے. جو غریبوں ہم بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کہتا فرماتا ہے کہ جو شخص، جو لوگ آپ کے لیے کام کریں، پھر اللہ کا کرم شامل ہو جائے، آپ کے بچوں کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کے الاؤنسز بڑھ جائیں، آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں، آپ کو 60 سال کی تاریخ کے اندر روزوں کے اندر بھی ایک ایکسیشیا کی شکل میں تمام CDA امپلائیز کو ایک تنخواہ مل جائے، تو پھر جو قومیں، پھر یہ قومیں جو میرے رب کے فرمان کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو وہ اللہ کی ناراضگی کے مرتکب ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے میں آپ کا شکریہ اس وقت قبول کروں گا، یہ میرے رب کا فرمان ہے،
जो हम सब का रब है, जो रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का रब है, हम सब ने उसके पास लौट कर जाना है, तो फरमाते हैं कि मैं आपका शुक्रिया उस वक्त कबूल करूंगा जब आप मेरे बंदों का शुक्रिया अदा करें। तो मेंटेनेंस वालों आपको सलाम, मेंटेनेंस वालों जिंदाबाद। आपने उस रब के फरमान के मुताबिक आज ये खूबसूरत महफिल जो शुक्राने की महफिल है वो सजाई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मसाइल पे भी बात की, ये होता ही इसलिए होता है कि ये जब तकरीबात होती हैं जहाँ पे आप लीडरान को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे ये काम की, वहाँ फिर आप अपने वो मसाइल, अपने दुखों को भी बयान करते हैं। और आज तो महफिल ही ऐसी खूबसूरत है कि मशूक अली शेख साहब को मैं कोई खुशामद नहीं करता, लेकिन मैं सच बात कहने से कभी नहीं डरा, और सच मेरे रब का फरमान है। मैंने इन्हें हमेशा मजदूर दोस्त पाया, मेरा इनसे एक अकीदत मोहब्बत का रिश्ता भी है। जब बहुत सख्त नाराज भी हो जाए किसी से तो मैं 2 दिन का वक्फा डाल के चले जाता हूँ, अल्लाह इनको खुश रखे, ये राजी हो जाते हैं। यही बात है, इंसान है ना। तो मैं आज वो भी तशरीफ फरमा है, यही मैं माहौल चेयरमैन साहब से कहता हूँ, मैं मेंबरान से कहता हूँ कि हम एक घर के अफराद हैं, ये सीटीए हमारा सबका घर है, हमें इकट्ठे मिलकर काम करना है और नताइज बहुत मुस्बत निकलेंगे। अब ये जो इज्जत आज हमारे अफसरान जो तशरीफ फरमा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम हैं, ये जो इज्जत हमने आपने इनको दी है, ये दौलत होती है असल। इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जो बहुत ही मोहतरम है, कौमी रहनुमा है, वो बहुत कुछ करते हैं इन चीज़ों के लिए। ये जो अभी सजी सजाई महफिल आप सबको मिल गई है, तो मैंने चेयरमैन सीटीए को दावत दी उन्हीं के कहने पे। ये भी मैं बता दूं, मेरे चेयरमैन हैं दायरे के, हमारे चीफ कमिश्नर भी हैं इस्लामाबाद के, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमें एहसास है, कैपिटल है, आज के जो हालात हैं उसका भी बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 जून को प्रोग्राम रखा जाए। तो सदर साहब तशरीफ फरमा है, रंगजेब खान साहब मेजबान हैं, हम एनवायरमेंट डायरेक्टरेट वाले, लेकिन ये सीडीए पूरे का जलसा है, इस्तकबालिया है, इसमें सुन लें, मेरा ये मैसेज है, यहाँ से लेके यार तमाम डायरेक्टरेटों के नुमाइंदे हैं, आप सबका ये फरीजा है कि आपके घर का सरबराह जनाब आमिर अहमद अली साहब, आपके मुअज़्ज़ज़ बोर्ड मेंबरान, आपके डायरेक्टर हजरात, आपके डीजी हजरात, उन सबको दावत भी है। वो जब आपके पास तशरीफ लाएंगे तो फिर आपने वो मेज़बान होने का सबूत देना है, जो हमारी दीनी तालीमात है, जो हमारे नबी का फरमान है। हम किस तरह अपने मेहमानों के लिए सरे राह बिछ जाते हैं, हमने किस तरह मोहब्बत का इजहार करना है और साथ डिसिप्लिन का मुजाहरा भी करना है। अगर आपको कुर्सी ना मिले, ये कुर्सी की बड़ी जंग है, ये हमारे यहाँ भी है, ऊपर में भी है। इस कुर्सी की बजाय नीचे बैठ जाना ये कारकुन का एजाज है, ये इज्जत है। वहां पे आपने साबित करना है कि सीटीए मजदूर यूनियन, जहां 15,000 की नुमाइंदा तंजीम है जिसने तारीखी फतह हासिल की, वो पूरी दुनिया के मजदूरों की, पूरी दुनिया के करोड़ों मजदूरों की जो तंजीम है उसके साथ मुंसलिक है। और आपका ये भाई जो कद में छोटा सा है, वजन में बहुत कम है, शक्ल से भी लीडर नहीं लगता, वो मूछे ऊंचे भी बड़ी नहीं है, लंबा चौगा भी नहीं है, तो जरी चप्पल भी नहीं पहनी हुई, लेकिन करदार का गाजी है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान के पूरे मजदूरों की जो तंजीम है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का लाख लाख शुक्र है
मैं आज सेक्रेटरी जनरल हूँ। जब उसका इलेक्शन हुआ लाहौर में तो सारा दुनिया देख रही थी, अमेरिका न्यूयॉर्क देख रहा था, टोक्यो देख रहा था, बैंकॉक देख रहा था, मनीला वाले देख रहे थे और इस्लामाबाद में ILO वाले देख रहे थे। और मुझे वहाँ पे सिंध से, अंदरूनी सिंध से, सक्खर से, कराची से और चारों सूबों से जो ट्रेड यूनियन के लीडरान आए थे, जनरल सेक्रेटरी सदर जो बड़ी अहमियत के हामिल थे, अपनी अपनी जगह नुमाइंदा थे, उन्होंने वोट देना था। और जब मेरा नाम बोला, मैं आपको अल्लाह का को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ, कहा कि CDA का था कि लाहौर में जेल रोड पे अफवाह के हाल है, बहुत बड़ा हाल है, तो उसमें हजारों लोग बैठे हुए थे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा था उसने मेरा नाम बोला, तो मेरे नाम के साथ क्या था ये बताऊं, जिसने मुझे ये इज्जत दी। CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हैं। तो पूरा हाल खड़ा हो गया। उसमें ख्वातीन भी थी जो सक्खर की मिलों की मुलाजिम होंगी, उसमें बलूचिस्तान के पहाड़ों में काम करने वाले माइन सेक्टर के भी थे, उसमें बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी थी, उसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी लीडर थे। दोनों हाथ खड़े करके कहा कि चौधरी यासीन की खिदमत इतनी है कि हम मुकाबले पे कोई खड़ा नहीं होता। तो जब मैं वहां, तो किसका नाम आया? CDA का। CDA के मजदूरों, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अपनी अहमियत को पहचानें, अपनी यकजहती को कायम रखें। फिर मैं कहूँगा मोहब्बतों को फरोग दें, नफरतों का खात्मा करें। हमारे माशरे में बदनसीबी ये है कि हम जितनी तवानाइयाँ एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम वही तवानाइयाँ किसी तामीर के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन अफसोस बहरहाल ये है आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है, इसमें मैं शेख साहब से ये कहूँगा कि आपके आने से पहले हमारे अजीज रज़ा बल्ती साहब ने, सरदार शौकत साहब ने, जो आपके सफाई हैं, हमारी तंजीम के ओहदेदारान हैं, और ज़ाहिद भट्टी साहब जिन पे मुझे बड़ा नाज है, जिसे मैं कहता हूँ कि ये ऐसा साथी है जो अपना काम भी करता है और वर्कर के लिए भी भागता है। ये बेवा की फाइल उठा के जब घूमता है तो यकीनन कोई ना कोई बेवा ना सही तो उसका बच्चा इसे जरूर दुआ देता है। और ऐसे लोगों की वजह से मेरे जैसे गुनाहगारों की बख्शिश का जरिया हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे शेख साहब खुद भी सोशल रफाई कामों में हिस्सा लेते हैं, इत्तफाक ये है कि जिनसे इनका ताल्लुक है मेरा भी उन्हीं से ताल्लुक है। उस लिहाज से आज अगर मैं यहाँ जमूद खान का जिक्र ना करूँ, अभी मेरे आने से पहले उनका फ़ोन आया था तो मैंने कहा मैं एक जलसे में जा रहा हूँ। तो जब मैंने शेख साहब, मशरूक अली शेख साहब को देखा तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको थोड़ी सी ज़िमनन बात करता चलूँ कि जब जमूद खान एक ज़मींदारा घराने से ताल्लुक रखता, सुनिए, उसने भी आंख खोली तो सोने का चम्मच मुंह में लेके खोली और फिर कॉलेज में गया, वकालत की और फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और फिर ऐसा जला जो आप उस वक्त, आजकल तो मीडिया का बहुत दौर है, सोशल मीडिया का, अगर आपने देखा हो तो हर जगह पुलिस से लड़ता हुआ, लाठियां पकड़ता हुआ, लाठियां खाता हुआ नजर आता था। और फिर जब बीबी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, अगर आपको याद हो, कभी कभार वो दिखाते हैं उनकी बरसी पे, तो लियाकत बाग में वो सुर्ख रंग की टोपी पहन के उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन फिर उस शख्स को कैसे अल्लाह ने बदला, ये जरा देखिए। जो मैं बात कहना चाहता हूं उस पे, ये तो मैंने उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बढ़ाई। फिर एक ऐसा शख्स जो वकील है, वो जो जेला है, जो सियासतदान है, फिर उसको कैसे मेरे रब ने कहा जमूद खान आओ वो काम करो जो आपकी अगली जिंदगी भी समझ जाए। तो फिर यतीमों की कफालत का जिम्मेदारी ले ली,
میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سی ڈی اے کے ملازمینوں آپ 15,000 ہیں اور وہ اکیلا تھا، ایک میں تھا یا 2-4 اور لوگ تھے، ایک گیسٹ ہاؤس میں تھے۔ میں نے کہا خان صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم دہشت گردی کی عروج پہ لوگ کے بچے یتیم ہو رہے تھے، کیسے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں۔ اس نے کہا چودھری یاسین بس صرف آپ ان یتیم بچوں کو سی ڈی اے کے ملازمین کی طرف سے ایک ایک پھول دے دینا۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس دولت نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے شخص میرے ساتھ ہو گئے تو ایک دن ہم انشاءاللہ اس پاکستان کے یتیم بچے، ان کی کفالتی نہیں کریں گے، ان کو بہترین تعلیم دلائیں گے، ان کو اس ملک کے وہ شہری بنائیں گے، یہ جرنیل بنیں گے، یہ پالیٹیشن بنیں گے اور یہ انجینئر بنیں گے۔ اور پھر وہ خواب اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ آج کیڈٹ کالج ہے، آج لاڑکانہ بے نظیر شہید کیڈٹ کالج میں یہاں کے بچے، سویٹ ہوم کے بچے، اب سویٹ ہوم آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں نے آپ کو اکثر کہتا ہوں سویٹ ہوم پہنچے تو آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، چنائن میں ہے، قریب قریب۔ یہ کیوں نام رکھا کہ یتیم جو ہے ہمارے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، وہ یتیم تھے، وہ در یتیم تھے۔ اس سے ذرا یتیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور پھر آپ اپنا کام حصہ ڈالیے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ چودھری صاحب یتیم کا لفظ سے کم ترین یہ کم تری ہے، تو چلیے کسی ایک شخص نے کہا نام رکھتے سویٹ، میٹھا، سویٹ ہوم، میٹھا گھر۔ اور پھر آج وہ سویٹ ہوم کے نام سے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر 5,500 بچے، قوم کے بچے، یتیم بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے 16 یہاں سے سویٹ ہوم کے بچے کو میرٹ پہ داخلہ ملا ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں جنہیں ہم پریاں کہتے ہیں اور وہ جو ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں، یہ جو یتیم بچے ہیں، اور وہ سب کا پاپا جانی زمرد خان۔ یہ مثال اس لیے دی ہے، یہ اس لیے بتایا ہے، زمرد خان کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ میں تعارف نہیں کرا رہا، میں اس شخص کی جدوجہد کو سلوٹ کرتا ہوں، میں اس کے مصمم ارادے کو۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ 15,000 لوگ، جو 15,000 خاندان ہیں، جو شہر کے وارث ہیں، آپ ہی کے ووٹوں سے ایم این اے بنتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، جمہوریت ہے، آپ پی ٹی آئی والے کو بھی سلام، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے اس کو بھی سلوٹ، کوئی جماعت کا ہے اس کو بھی سلوٹ، کوئی نون کا ہے، کوئی کاف کا ہے، سب کو سلوٹ۔ لیکن آپ ہیں سی ڈی اے کے امپلائیز، آپ کے اندر میرے کرسچین بھائی بھی ہیں، ہم سب جو ہیں ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ہم رنگ، نسل اور مذہب سے بالاتر ہیں، ہمارے اندر یکجہتی کا فقدان ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں ایسے تو پھر ہم طاقت ہیں۔ اور چودھری یاسین یا اس کی ٹیم آپ کو یقین دلاتی کہ آج کی طاقت کو تعمیر کے لیے، آپ کے مستقبل کی بہتری کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے استعمال کروں گا، کبھی سیاست میں یا اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن آپ سے میری گزارش آج مینٹنس کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ گھروں میں بھی کلیش ہے، حقیقی بھائیوں میں بھی ہے، یہ دنیا اب ہم قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، سب حقیقی بھائیوں میں ہوتا رہے۔ لیکن جب گھر کو خطرہ ہو، گھر میں ڈاکو آ جائیں تو گھر کے مکین اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پہلے گھر کو بچائیں، بعد میں لڑتے رہیں گے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ سی ڈی اے ہمارا گھر ہے، وہاں سے ہم نے جیسے مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو سی ڈی اے سے مزدوروں کے حقوق کی آواز آنی چاہیے، اور وہ ایسی آنی چاہیے کوئی نہیں ٹھہر سکتا عوام کے سامنے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں
बड़े बड़े मैंने देखे हैं, मैंने जर्नैलों के साथ काम किया, 52 ईयर से हूँ, ये मेरे रब का कर्म है, निस्फ सदी गुजर चुकी है, कोरोना से बच गया हूँ। मैं उन कुव्वतों से कहना चाहता हूँ जो मजदूरों के रास्ते में रुकावट है, वो मुझसे बच जाए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो बाकी बातें जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की, अल्लाह का कर्म सामने हार रहा, उसके हबीब पाक के सदके 1 जून को जहां हम आंखें बिछाएंगे, फूल बरसाएंगे, तो साथ साथ मैं और मेरी टीम जो है आपके हकूक को भी उठाए, हम हकूक को बयान करेंगे। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ जनाबे अपने जो असल शहर के वारिस हैं, चेयरमैन साहब, बोर्ड मेंबरान, बड़ा ताकतवर बोर्ड है, जो कुछ आजकल मैं देखता हूँ बीच में मैं भी हिस्सा डाल लेता हूँ। अगर हमारा 1 रुपया आपके पास है, उसमें इस मजदूरों का जो 15,000 मजदूर हैं, जिसकी तादाद के ऊपर आप मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, 2 HRD डायरेक्टर हैं, क्या से क्या हैं, कितने DG हैं, तो फिर उनके 4 आने हमें दे दो, 12 आने आपके। अमन होगा, प्यार होगा, तरक्की होगी। कहते ना, ये मत समझें कि ये घर के हैं चौधरी यासीन, हम बिल्कुल घर के हैं। इसको वो मिसाल ना बनाना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं है। अगर घर का अंदर बहुत बातें होती हैं, बेटा बाप से मांगता है, उसके पास वसाइल नहीं, लड़ाई होती है, लेकिन वही बेटा जब घर में से बाहर निकल के बात करता है तो पूरा जमाना सुनता है, वो खतरनाक बात है। तो हम चाहते हैं कि घर की बातें घर में हो, बैठकर हो, हमारा हिस्सा हमें मिले, आपका हिस्सा आपको, सब कुछ हजम। इस सीने में बहुत सच है, जैसे कहते हैं ना अदालत में, जो कहूंगा सच कहूंगा। आज फिर आवाम की अदालत में कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा नहीं कहूंगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुझे सच बोलने से बचाएं, आप बचें। मैं बोल गया तो सीने के अंदर बड़े राज। आइए आज हम अहद करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये सिखाया जाता है कि रुपया मांगते हो, शेख साहब कहते हैं मेरे पास 4 आने हैं, वो ले लो। तो साहब बजट नहीं है, पैसे नहीं है, ये हालात हैं, नेक्स्ट बजट में दे देंगे आपको। 4 आने ले लेने चाहिए। 12 आने का तकाजा शेख साहब से जारी रखेंगे और इंशाल्लाह इस तरह रुपए से भी ज्यादा लेंगे, लड़ाई नहीं करनी। ऐसे ही है भाई, बहुत सारों के हम लेके जाते हैं शेख साहब के पास रेनोवेशन के केस, चूंकि शहरदार हूँ, तमाम यहाँ के जो कौमी सलामती के इदारे, एजेंसियाँ, थाने, सबसे ताल्लुक है। वो कह देते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब से आपका ताल्लुक है। मैंने कहा जी बिल्कुल फख्र से कहता हूँ, ले जाएं। जब इनके पास फंड होते हैं, चूंकि मेंटेनेंस ग्रांट होती है, वो शायद आपको नहीं पता, मुझे पता है, उससे माहिर मिलती है और वो काम बहुत ज्यादा होता है, पैसे कम होते हैं, उसमें प्रायोरिटी लगानी पड़ती है। तो मैं बात आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब आती है आपकी प्रमोशन, वो भी मैं शेख साहब से अभी आपके सामने, क्योंकि हम सब बैठे अपने घर में, तो मैं शेख साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे अफसरान की बड़ी प्रमोशन हुई। शेख साहब जुड़ में हैं, बहुत लेट हुई, बहुत लेट हुई। इंजीनियर कैडर तो बहुत ही मुतासर हुआ। मैंने कल मेंबर इंजीनियर के कमरे में खड़े होकर कहा, बहुत सारे इंजीनियर थे, कि मुझे बहुत दुख है कि आपने एक दूसरे की टांगें खींच के, जो सबसे अहम कैडर होता है किसी भी मुल्क का, वो इंजीनियरिंग का शोबा होता है। बहरहाल आपका ग्रेड 19 हुआ, हमारी दुआएं आपका 20 हो, मंजूर शाह का 20 हो गया, हम उनका भी, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मुझे दुख से, अफसोस से कहना पड़ता है, जो मैंने चेयरमैन को, अगर आप कुरानंदाजी में थे, जब हज की कुरानंदाजी हुई, तो अगर आप थे, मैं क्या कहा था कि जनाब CTA में एग्जेक्टिव कैडर, ये जो हमारे भाई एग्जेक्टिव वाले हैं, ये बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो डर लगता है कि बहुत जल्दी चेयरमैन की सीट तक पहुंचने वाले हैं।
अल्लाह करे वो पहुंच जाएं, हम तो खुश हैं। लेकिन मैंने कहा ग्राउंड रियलिटी पे आइए जनाब चेयरमैन, जो आपका बेलदार है, जो आपका माली है, जो आपका फ्राश है, और ये सब के जो नैब कासद है, जिंदगी के 25 साल दे के, कीमती साल दे के, जब उसकी बेटियां बेटे जवान हो जाते हैं, वो 5 में रिटायर होता है। कभी आपके ज़हन में आया वो दुआ नहीं देता, मैं लिख के देता हूँ, वो दुआ नहीं देता, वो बदुआ देता है कि ये मेरे साथ क्यों ये जुल्म। मेरे साथ जो LDC भर्ती हुआ था वो डायरेक्टर पे पहुंच गया, तो इसका हल हमने क्या निकाला, आप नुमाइंदा लोग बैठे हुए हैं, ये देते रहे, आप मेरी बातें भी सुने। मैं आपके जरिए पूरे CDA को पैगाम देना चाहता हूं, नुमाइंदा लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने आपकी टाइम स्केल प्रमोशन का फार्मूला निकाला, और अब मैं सिर्फ आपको टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से इतनी बात कह के अपनी तकरीर खत्म करूंगा, और आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि अब आपका कोई बेलदार, कोई माली, कोई नायब कासद 5 में नहीं रिटायर होगा, इंशाल्लाह 7 में होगा। पेंशन भी मिलेगी। हम और कोशिशें कर रहे हैं, हम खूब से खूबतर की तलाश में हैं, आपका साथ चाहिए, और वो साथ मैंने यकम को देखना है। 1 जून को CDA के मजदूरों, आपने ये बताना है कि हम इस शहर की ताकत हैं, और चौधरी यासीन जो है वो शहर का सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी है, इसलिए कि उसके साथ गरीबों की दौलत है। आप सबका बहुत शुक्रिया, एक एक का शुक्रिया, खुसूसी तौर पे उस इंतजामिया का शुक्रिया, अपने फिर अफसरान का शुक्रिया। यही माहौल मैं चाहता हूँ, जब ये माहौल पैदा हो गया, जिस दिन चेयरमैन वहाँ सारे बैठे हुए, वो मोहब्बतें वो बुला नहीं सकेंगे, लेकिन कुछ तल्ख बातें भी सुननी पड़ती, घर वालों की, बड़ों का काम है, वो सुन लिया करें। एहतराम दिल में भी है और वो पेश भी किया है, और ये जो बातें यहाँ मुझसे पहले राजा शाकिर ज़मान चेयरमैन ने की हैं, उनके अपने जज्बात हैं, मैं कदर करता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा आखिर पे, कि जो बाजार ये थे ना पहले, अभी हैं, अब ज़रा कोठियों में शिफ्ट हो गए हैं। पहले 2-4 जो जगह होते थे, कसाई गली, क्योंकि हमने ये तमाम इबादतें की हैं, मैंने कोई इबादत छोड़ी नहीं शेख साहब, तभी मैं इबादत गुजारों के साथ अपने आपको दी है। वो मजदूरों की फलाह के लिए काम करें, इन चीज़ों से निकल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, को गलती गुस्ताखी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, सब लोगों का फिर शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الفرد وقنا عذاب الميزان۔ اے مالک و مولا، جو ہم حاضر ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب، دنیا سے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، جو CDA ملازمین دنیا سے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو CDA کے لیے کام کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ جو مزدوروں کے کام رکے ہوئے ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو اس سب کے ساتھ صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو، افسران کو، ملازمین کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔